Hello students, let us continue our 6th chapter 11 Indian Judiciary, and in that the powers and the jurisdiction of the Supreme Court. Student, as we discussed in the class, jurisdiction is official power which is been given by the higher authority to the different kinds of courts. Now there are basically three types of powers that are allotted by to the Supreme Court, that is original jurisdiction, appellate jurisdiction, advisory jurisdiction, and there are also some other powers which are given to the Supreme Court. Students, let us discuss about the original jurisdiction, original powers. See, in a simple language, the case which are directly solved by the Supreme Court is called original jurisdictions that come under original powers. For an example, the case of in Ram Mandir has been directly solved under original power, original jurisdiction. जो केस पहले सीधा का सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास आए, that all will be covered in original jurisdiction. Let us cover something about original powers from the text itself. See, over here it is given, it has a power to directly give judgment after hearing a case, and that comes under original powers, and has the power to make decisions regarding the case. The case which are directly comes and hears by the Supreme Court, and Supreme Court has the power to solve that solve that matter, solve that case, and give decisions regarding it, and no other parties can interfere in it, and जो parties इसमें involved है that are supposed to be there under the Supreme Court. Now let us discuss the first point. It has the power to settle disputes between the government of India and other states. For an example, Punjab and Haryana farmers are fighting with the government for some particular kind of farmers law, right? So they are dissatisfied with the center and different states, so these matters are being solved in the Supreme Court. Next point, to resolve the difference of opinions, fights, conflicts between the government of India and one or more states. See, when there is dissatisfaction of different states, opinions, fight can be for any matters, right? It can be according to the boundaries matters and all that stuff. जो एक स्टेट दूसरे स्टेट या दो तीन स्टेट मिलके there is some kind of fights and some kind of difference in opinions, and that matter are solved by the Supreme Court. It has complete power. Third point tells us that it has complete power to give judgment regarding fights or quarrels. जो fight होती है, quarrels होती है between two states, that come under original powers. Next point tells us that the Supreme Court has the right to give judgment concerning any set of union government. Union government के साथ अगर ना खुश है तो भी वो केस सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा. एंड लास्ट इज, अगर कोई फंडामेंटल राइट का ब्रेकेज हुआ है, कोई ब्रेक कर रहा है, तो अंडर हैबिस कॉर्पस मैंडमस, इसका मतलब ये है कि भाई कोई ये एक्चुअली एक लॉ पास किया गया था दैट वाज different kinds of cases were being solved under habeas corpus. तो इसके लिए there is been a kind of judgment given by the Supreme Court. तो that is also known as order of prohibition कि इतना करना इतना नहीं करना, it is being prohibited. तो अगर फंडामेंटल राइट्स का ब्रेकेज हुआ है तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर सुप्रीम कोर्ट. स्टूडेंट्स, एक चीज़ जो लास्ट में दी गई है कि कोई भी मैटर अगर दो या तीन स्टेट्स के बारे में है, आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर डिस्प्यूट्स, रिवर वाटर डिस्प्यूट. फॉर एन एग्जांपल, तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में एक रिवर जाती है, वो है कावेरी. तो दे आर फाइटिंग फॉर रिवर कावेरी, वाटर ऑफ कावेरी. तो वो केस जो है वाटर रिलेटेड मैटर, वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगा, पर इसका मैटर जो है वो वाटर ट्रिब्यूनल सॉल्व करेगा. ठीक है, और ये जजमेंट
फाइनली वाटर ट्रिब्यूनल देने के बाद इसमें एक डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट एक सिर्फ डिसीजन लेते हैं और इसमें कोई चैलेंज नहीं कर सकते और इसको आपको रिस्पेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है. फाइन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन. एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन इज सच केसेस और अपील दैट हैव बीन हर्डेड बाय अ लोअर कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के नीचे जो भी कोर्ट्स आते हैं उन्होंने पहले से ये केस को सुन रखा है, अपील कर रखी है और वो भी डिससेटिस्फाइड है, तो वो केस एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में आएगा. उसमें 3 टाइप्स है. एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के लिए केस है, सिविल केसेस है एंड क्रिमिनल केसेस के लिए अपील की जा सकती है. स्टूडेंट्स, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन में आपको ये याद रखना है कि एक ऑर्डर और वृट, लॉ की भाषा में ऑर्डर को वृट बोलते हैं. हाई कोर्ट अगर आपको ये ऑर्डर दे, वृट दे कि फाइन आप ये मैटर को सुप्रीम कोर्ट में जाके सॉल्व कर सकते हैं, एंड देन ओनली यू कैन सबमिट द सर्टिफिकेट दैट इज गिवन बाय द हाई कोर्ट एंड यू आर गोइंग. So students, so if you want to go to the Supreme Court indirectly from the lower court, that all matters will be discussed in the appellate jurisdiction. Now over here it is also given कि अगर आप जा रहे हो सुप्रीम कोर्ट में, then it should have the matter that are not been break constitutional right which are not been violated, तो ही आप ये केस को सुप्रीम कोर्ट में जाके सॉल्व कर सकते हैं, ये बता के दैट देयर इज सम काइंड ऑफ फॉल्स जजमेंट इज इश्यूड बाय द हाई कोर्ट और एनी अदर लोअर कोर्ट. In next it is given that it solves the cases of civil matters. Civil matters in the sense कि a kind of problems that are in घरेलू मैटर्स होते हैं, फाइट्स होती है, that all are being solved under civil cases. और यहाँ पर सिविल केसेस के लिए सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करती है कि जो लोअर कोर्ट है उन्होंने गलत अपील की है, गलत जजमेंट दिया है, तो आप पिटिशनर मतलब कि पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं, एंड एट दैट टाइम यू आर सपोज टू गिव 1 लाख रुपीज़. स्टूडेंट्स प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर कि 1 लाख रुपीज़ आपको देना होता है, एंड देन ओनली यू कैन गो एंड अपील टू द सुप्रीम कोर्ट. अगर क्रिमिनल केस की बात करें तो क्रिमिनल केस में आपको ये बताना है कि क्रिमिनल में जो भी पनिशमेंट दिया गया है दैट इज़ नॉट प्रॉपर, दैट इज़ इनएप्रोप्रिएट. And you are supposed to challenge the Supreme Court, and then Supreme Court will review that judgments that are given by the lower court, and ये केस के ऊपर वो सुनवाई करेंगे एंड एक एक्ट बनाएंगे कि पनिशमेंट क्रिमिनल के लिए कैसा दिया जाएगा. Moving on to the advisory jurisdiction, official power to take judgments and decision. Repeating it one more time, students, so try to remember it. What is jurisdiction? Advisory. Students, now you know what is advice. Counseling देना. यहाँ पर Supreme Court gives advice to the president, and president उसके लिए काउंसलिंग करेंगे, या तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे, एंड सुप्रीम कोर्ट विल काउंसिल इट कि द मैटर्स इज करेक्ट और नॉट, मैटर को आगे लिया जा सकता है कि नहीं, एंड एज अ बिल. एंड देन इट इफ प्रेसिडेंट वांट्स टू एक्सेप्ट इट, then that advice of the Supreme Court, it can accept it, and again it can give their own feedbacks and relevancy कि कितना relevant है ये advice, and then it can be carried forward. In the other powers, let us learn something, that in other powers of the Supreme Court, that we cannot take any decisions, any judgments that are disrespected by the Supreme Court. And one more thing, students, Supreme Court के पास ऐसा power है to nullify मतलब to cancel any steps. कोई भी steps जो legislative और executive ने लिया है या violation हुआ है तो उसको भी वो cancel कर सकते हैं, ऐसा power उसके पास है.
एंड दैट इज़ हाउ हम सुप्रीम कोर्ट को क्या बताते हैं, एक गार्डियन बताते हैं, रक्षक बताते हैं, सेवियर बताते हैं, बचाने वाले बताते हैं। किसके? तो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को, हमारे संविधान को, एंड द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। स्टूडेंट्स, रिकॉर्ड तो आपको पता ही होगा, व्हाट आर रिकॉर्ड्स? इट इज़ अ मैटर दैट आर रिकॉर्डेड, प्रेजेंटेड इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। तो बस उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट भी रिकॉर्ड रखते हैं। किसका? तो जो डिसीजंस लिए थे, जजमेंट्स लिए थे, और उसके साथ साथ कौन से प्रूफ उसमें है, उन सब का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट रखता है। क्यों रखता है? सिंपल रीज़न इज़ फॉर द फ्यूचर अंडरटेकिंग्स। कोई भी फ्यूचर में अगर ऐसा केस फिर से आए तो वो दोबारा रिकॉर्ड्स को पढ़ के समझ सकते हैं, फॉर एनी रेफरेंसेस बाय द Supreme Court. So in the last line it is given that any court showing its contempt or disapproval can be punished. अगर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस या जजमेंट्स को कोई भी कोर्ट मना करे तो उसको पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। We'll discuss something on the High Court now. Students, for your brief understanding I have written some of the points of the High Court. हाई कोर्ट को एपेक्स कोर्ट बोला जाता है ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। स्टूडेंट्स याद रखना, स्टेट का एपेक्स कोर्ट इज़ हाई कोर्ट एंड जस्ट द एपेक्स कोर्ट इज़ सुप्रीम कोर्ट। हर एक स्टेट के पास एक हाई कोर्ट होता है, कोर्ट ऑफ एवरी स्टेट दैट आर बीन अलॉटेड, वो पहले से ही अलॉट किया गया है। देयर इज़ अ कॉमन हाई कोर्ट। सी, हर एक स्टेट का यहाँ पर एक हाई कोर्ट होता है, बट इंडिया में ऐसे 2 जगह है जहाँ पर कॉमन हाई कोर्ट है। कहाँ पर है? पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़। फाइन, यहाँ पर एक ही हाई कोर्ट है, दैट इज़ इन चंडीगढ़। सेकेंड एग्जाम्पल कॉमन हाई कोर्ट का है आसाम में। आसाम की अगर आप बात करें तो आसाम में एक ही हाई कोर्ट बिलोंग करता है ऑफ द 7 सिस्टर्स, 7 स्टेट्स ऑफ ईस्ट। वो कौन से है? दैट इज़ मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। इसका एक ही हाई कोर्ट है, दैट इज़ इन आसाम। स्टूडेंट्स प्लीज़ रिमेंबर दिस 2 कॉमन कोर्ट्स। बाकी हर एक स्टेट के लिए देयर आर डिफरेंट हाई कोर्ट्स। ओके, मूविंग ऑन टू द फॉर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट किससे बनता है? चीफ जस्टिस, CJ इज़ चीफ जस्टिस। और इसको कौन अपॉइंट करता है? इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन। कंसल्टेशन इन द सेंस कि थोड़ा सलाह मशवरा करते हैं किसके साथ? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। सो स्टूडेंट्स ट्राई टू रिमेंबर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ मिल के प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को चूज करते हैं। प्रेसिडेंट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट रिप्रेजेंटेटिव है हर एक प्राइम मिनिस्टर का एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स जो पार्लियामेंट में बैठते हैं। फाइन, आई होप यू आर क्लियर विद द फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अरे सॉरी हाई कोर्ट। स्टूडेंट्स, इसमें भी अगर आप दिया गया है जैसे वी डिड इन सुप्रीम कोर्ट दैट अगर आपने कोई माल प्रैक्टिस या मिसकंडक्ट है तो आपको भी निकाला जा सकता है, इन द सेंस कि जज को निकाला जा सकता है। और अगर प्रेसिडेंट को लगे कि वर्कलोड ज़्यादा है तो एडहॉक जजेस को भी लगाते हैं एंड और वो एडहॉक जज सिर्फ 2 साल के लिए होते हैं। ओके, एंड 62 years is the retirement age of the judge of the high court. So please try to understand. And one more thing over here, that the English is the official language which is to be discussed in the high court. अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में ये पास किया जाए कि भाई आप अपनी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो तो वो रीजनल लैंग्वेज बाद में यूज़ करेंगे, बट ऑफिशियल लैंग्वेज टू बी यूज्ड इज़ इंग्लिश ओनली। Students, let us begin the qualification of the High Court. The person should be the citizen of India. The person should have served a minimum period of 10 years or any of the judicial post in the lower court.
कोई भी तरीके से वो लोअर कोर्ट में मिनिमम पीरियड 10 years के लिए द पर्सन शुड बी सर्विंग इट एज एन ऑफिसर, ओके, एंड 10 years ऑफ एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट इन द हाई कोर्ट। अगर जज बनना है तो 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए हाई कोर्ट के जज बनने के लिए। डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होने चाहिए, मतलब एक्सपर्ट होने चाहिए लॉ में, लॉ मेकर होते। अगेन द पर्सन शुड बी गुड इन द आईज ऑफ द प्रेसिडेंट, and the retirement age is 62 years of age. The oath of secrecy is given over here. Secrecy in the sense कि एक pledge ली जाती है secrecy में कि भाई हम जज बन रहे हैं, we are giving they are getting a much respect now, at the respected position they are sitting, and that is how the governor checks on their pledge also. Fine. Let us continue with the jurisdiction, official power to take decision. Repeating it the word once again for the High Court. Original jurisdiction, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में किया वैसे ही ओरिजिनल सीधा का सीधा हाई कोर्ट पे अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई डिसीजन लेने के लिए केस आ रहे हैं, तो दैट कम्स अंडर ओरिजिनल jurisdiction. Again, it solves the matter related to the companies, marriages, divorce and alimony. Now the word alimony is sometimes the distribution of property, and it can be also the mother and the father are getting divorced, then who will be taking care of the wife and how much rupees are being given to the divorced person. For an example, अगर वाइफ हैं तो वाइफ को कितने पैसे दिए जाएंगे, मंथली एक्सपेंस दिया जाएगा, जिसको हम कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बोल सकते हैं. तो दैट ऑल मैटर्स आर सॉल्व्ड इन हाई कोर्ट. ओवर हियर ऑल्सो द मैटर्स लाइक लैंड रेवेन्यू एंड इट्स इम्बर्समेंट. रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू इन द सेंस कि जो भी टैक्स है तो उसके लिए अगर कोई लेना है, लेन देन है, केसेस है, मैटर्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो वो हाई कोर्ट पे सॉल्व होंगे. लैंड रिफॉर्म्स, अगर किसी ने किसी की भी ज़मीन को थोड़ा पार्ट अपने अंडर कब्जे में कर लिया है एंड उसके लिए रिटर्न चाहिए, तो दैट ऑल विल बी डन इन द हाई कोर्ट. ऑल writ पिटिशंस, writ हमने आगे भी किया था, writ इज ऑर्डर. फाइन. ओवर हियर इट इज गिवन ऑर्डर और writs. फाइन. So that all will be given by the high courts, all the order under same habeas corpus जो हमने आगे already कर लिया है. Now let us talk about the appellate jurisdiction. Appellate in the sense कि कोई lower court से ये case आया हो, तो that all will be conducted and solved by the high court. Now students, try to remember civil and criminal cases are being solved. In case a session court has issued any judgment punishing the accused for more than 4 years, then the petitioner can challenge the judgment in the high court. अगर किसी को पनिशमेंट 4 साल से ज़्यादा मिला हो तो पिटिशनर, कोई पार्टी हाई कोर्ट में जाके अपना केस रख सकते हैं. उसके लिए कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है. एंड कभी कभार ऐसा होता है कि इफ़ द जजमेंट अंडर क्रिमिनल केसेस में अगर ऐसा होता है कि जजमेंट सही से नहीं दिया, इज़ नॉट सेटिस्फाइड, एंड एट दैट टाइम आप उसको चैलेंज कर सकते हो और हाई कोर्ट पे वो केस जा सकता है. ओके. एंड देन द हाई कोर्ट हैज़ पावर टू डिसाइड अपॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू लॉ इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस. उसके पास ऐसे भी पावर है, पर्टेनिंग मतलब रिलेटेड, लॉ के रिलेटेड हो तो ऐसे भी पावर्स हाई कोर्ट के पास है. थर्ड टॉपिक इज अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव jurisdiction. Students, in Supreme Court it was advisory jurisdiction. Now in High Court it is administrative jurisdiction. Now what we'll talk in administrative is High Court have the authority and power to supervise the working. हर एक जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है, जो नीचे के कोर्ट्स है हाई कोर्ट के बाद, उसकी वर्किंग कैसे चल रही है उसको सुपरविजन करने का पावर हाई कोर्ट के पास है. फाइन. और हर एक केस पेपर्स और प्रोसीडिंग्स में वो अपना जजमेंट, अपना रिव्यू, अपनी रीडिंग्स भी ले सकते हैं. और हाई कोर्ट में क्राइटेरियाज इन अ टेबुलर फॉर्मेट डिस्कस किया गया है. उसकी फ़ीस टेबुलर फॉर्मेट मतलब टेबल फॉर्म में वो पहले से ही हाई कोर्ट डिसाइड कर लेते हैं. ऑल दिस प्रोविजन शुड बी इन अकॉर्ड
अकॉर्ड इन द सेंस इन मैचिंग, मैचिंग किसके साथ मैच होने चाहिए ये डिसीजंस? कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, हमारे संविधान के साथ। और कैसे होने चाहिए? एंड इन हार्मनी, हार्मनी मतलब अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो सिटीजन्स के लिए वो पीसफुल मैटर होना चाहिए। द हाई कोर्ट कैन गाइड एंड डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन द मैटर ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड एंट्रीज। कोई भी एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए हाई कोर्ट उसको गाइड भी कर सकते हैं। द हाई कोर्ट ऑक्यूपाइज द प्लेस एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हाई कोर्ट के पास सारे रिकॉर्ड्स होते हैं उनके और उनके लोअर कोर्ट्स के, और उनके लिए एक जजमेंट को पब्लिश किया जाता है एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कि भाई ये जजमेंट ये केस के लिए इस प्रकार से लिया गया था, उसमें कौन से सेक्शंस कैसे लॉ लगाए गए थे, तो वो सब उनकी रीडिंग्स के लिए होते हैं। तो अगर फ्यूचर में अगर ऐसा केस आए तो उसको रेफरेंस के लिए भी, वो डिसीजन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फाइन। द लॉयर्स यूज़ दिस पब्लिश्ड जजमेंट्स एंड डिसीजंस। लॉयर्स ये बुकलेट को ये वो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। साइटेशंस, साइटेशंस इज़ एन ऑफिशियल लेटर इन मैचिंग विद द एक्ट। अगर कोई भी कानून, कोई भी धारा, कोई भी सेक्शंस का उनको अगर रीडिंग करना है, समझना है, तो ये लॉ के हिसाब से हाई कोर्ट पब्लिश करते हैं। ओके, वाइल प्लीडिंग देयर केसेस फॉर देयर रिक्वेस्टिंग देयर केसेस, उनके केसेस एडवोकेट लड़ने के लिए ये सब एग्जाम्पल्स उसको यूज़ कर सकते हैं ये रिकॉर्ड्स को बनाने के लिए। द कोर्ट हैज़ पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड द हाई कोर्ट ऑफ गुजरात इज लोकेटेड on the Sarkhej Gandhinagar highway. Please try to remember the High Court of Gujarat is situated in Gandhinagar, which is in Sola. We'll continue with the subordinate court in the next session.